کے لیے ہر انسان اس میدان میں جمع ہوگا اور ہر ایک پر اپنا غم طاری ہوگا. وجا قرآن کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اس خوفناک منظر میں، نفسا نفسی کے عالم میں اللہ آئیں گے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کیسے آئیں گے اللہ جانے. اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا کر لائیں گے میدان محشر میں. اللہ بڑے جلال میں ہوں گے، بڑے غصے میں ہوں گے. ساری انسانیت پر دہشت طاری ہوگی، خوف طاری ہوگا. اللہ آئیں گے میدان میں اور جانتے ہو آتے ہی اللہ کیا ندا لگائیں گے؟ او آدم کے بیٹے. اللہ جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے. اللہ اعلان کریں گے او آدم کے بیٹے، او آدم کی بیٹی. کیا سمجھتے تھے، کیا سمجھتی تھی یا کیا سمجھتے تھے؟ تمہاری حرکتوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا؟ تمہاری رات کی کالی کرتوتوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا؟ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کی راتیں ساری موبائل کے ساتھ کٹتی ہیں. کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ساری رات عیاشی میں لگے ہوئے رہتے. اللہ مخاطب ہو کر فرمائیں گا کیا سمجھتے تھے، کوئی نہیں دیکھنے والا؟ او بھائیو، اگر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، ہمارا مسئلہ آسان ہو گیا، حل ہو گیا. کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بات اگر ہمارے پلے پڑ گئی، ہماری سمجھ میں آ گئی، میری ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے. آج نہیں سمجھ میں آ رہی، کل میدان میں اللہ جھنجھوڑ کر، اللہ کان پکڑ کر، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، کان پھرا کر اللہ پوچھے گا وہ میرے بندے کیا سمجھتا تھا؟ کوئی دیکھ نہیں رہا؟ تیری رات کی حرکت سے کوئی واقف نہیں؟ پھر اللہ فرمائیں گے اور میرے بندے مجھے پتا تھا تو نے کتنی راتیں کالی کی ہے. میرے بندے مجھے پتا تھا تو نے کتنوں کا حق مارا ہے. میرے بندے مجھے پتا تھا تو نے کتنوں کے گردنوں پر پیر دیا ہے. اور میرے بندے آج سن، آج سن، جیسے عمل کر کر آیا ہے ایسے بدلے کے لیے تیار ہو جا، آج تجھے کوئی نہیں بچاتا. اس منظر کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اور میرے بندے تو نہیں سمجھ رہا. جیسے باپ ایک بیٹے کو سمجھاتا ہے نا، حالات سے واقف ہے باپ، بیٹا اس رخ پر چلا ہے تو باپ ایک درد سے اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تجھے نہیں پتا تو کیا کر رہا ہے، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، بعد میں سمجھ میں آئے گا، مت کر. اور سمجھ میری بات، اس محبت کے انداز سے سینکڑوں گنا زیادہ محبت اس میں ملا لو، 1000 گنا محبت اس میں ملا لو. اس ساری محبت سے اللہ ہمیں کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. میرے بندے ڈر اس دن سے کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. میرے بھائی عزیز ساتھیو، آئیں گا وہ وقت، آئیں گا وہ وقت جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کی تیاری کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا، یہ اصل محنت ہے. دنیا گزر گیا ہے، یہاں کی عزتوں کا دوام نہیں. اور کیا وہ عزت جس کے بعد ذلت کے کھٹکا ہو؟ آج عزتیں ملتی ہیں، چند دنوں کے بعد پھر ذلت کا پاڑا پڑے، پھر ذلت کی رسی میں اپنے آپ کو باندھ لے. آج صحت ہے، کل پھر بیماری، آج پیسہ آیا پھر کل قرضہ، آج خوشیاں آئی کل پھر غم. اللہ فرماتا ہے اور تو تیاری کر لے، تو میرا بن جا. ایسی دنیا، ایسی زندگی دوں گا، ایسی زندگی دوں گا جس میں جوانی ہی جوانی ہوگی، جس میں بڑھاپا کوئی نہیں ہوگا. بڑی غفلت میں ہے، اس غفلت سے نکالنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اور انہوں نے سمجھایا. اور دیکھو دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس قابل نہیں ہے دنیا کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اور دنیا اس قابل ہے کہ اس کو جوتوں میں رکھا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوے سے واپس ہو رہے تھے، دھوپ بڑی چلچلاتی تھی، بڑی شدت کی گرمی تھی، بڑی شدت کی گرمی تھی، سارے بدن میں پسینہ تھا. گھوڑے پر سوار تھے، چلتے چلتے ایک سائیدار درخت کے نیچے آئے، چھاؤں میں رکا، ٹھنڈ
ठंडी हवा चलने लगी, जब पसीनेदार बदन पर ठंडी हवाएं चलती है तो बड़ा सुकून महसूस होता है। चंद ही लम्हों के लिए दरख्त के साये में आए, हवा ने अपना काम करना शुरू किया, फौरन अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हुए। हवा जब चलती है ना खेतों पर, हरियालियों पर, तो बड़ा एक बड़ा सुहाना नजारा बनता है। हज़रत अली वहां देखे, नजारे की तरफ देखे, अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, ओ कहां अटकता है, कहां अटक रहा है दुनिया। उसके बाद उन हवाओं की तरफ रुख कर कहने लगे, ओ दुनिया मुझे धोखे में न डाल, मैं तेरे धोखे में नहीं आने वाला। कौन सी प्रॉपर्टी जमा किया था, महल को बनाया था, हक मारा था बहन भाइयों का, माँ बाप के साथ जुल्म किया था, क्या किया था? चंद लम्हे के लिए हवा ली थी, फौरन अपने आप को मुखातब होकर कहने लगे, ओ किस गफलत में पड़ रहा है। फिर दुनिया को मुखातब और कहने लगे, ओ दुनिया मुझे धोखे में न डाल, वो जाओ उन लोगों पर जो चंद कौड़ियों पर अपने ईमान के सौदे करते हैं, जो दुनिया बनाने के लिए माँ बाप के साथ गलत सुलूक करते हैं। ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से। और जाओ उन लोगों के पास जो अपनी दुनिया बनाने के लिए कितने गरीबों के हक को मारा है, जो अपनी दुनिया बनाने के लिए ना अल्लाह का ख्याल किया ना अल्लाह के रसूल का ख्याल किया। मैं तेरे धोखे में नहीं आने वाला, हज़रत अली ने फरमाया, मैं तेरे धोखे में। इन लोगों ने दुनिया को इस मकाम पर लाया था। और देखो तो सही हम किस दाल की शाख, हम किस दरख्त की शाख है। देखें तो सही, हमारे असलाफ, हमारे सहाबा ने हमें इस दुनिया के अंदर जीकर बताया है, रहकर बताया है, आखिरत से कभी गाफिल नहीं थे। अब्दुल्लाह इब्न रवाह रज़ी अल्लाह ताला अपनी बीवी के साथ थे। बीवी आ गई तो हमें क्यों पूछेगा, बहनें भी शिकायतें करती हैं, बीवी आ गई तो बहनों को क्यों पूछेगा। अब्दुल्लाह इब्न रवाह रज़ी अल्लाह ताला अपनी बीवी के साथ कमरे में थे, लेटे हुए थे, बीवी के रान पर सर था। आदमी तो सब भूल जाता है, वो बीवी के रान पे सर था। और देखो मेरे भाइयों, हम किस तारीख के, हमारी तारीख क्या है, हम किस चमन के गुल हैं, कौन से गुलिस्तान के फूल हैं। हम देखें तो सही, पीछे पलट कर कभी अपनी तारीख देखे, कभी अपने असलाफ को देखे, आगे ना देखे। अकलमंद वो जो अपनी पीछे देखकर चले जिंदगी गुजारने में। अब्दुल्लाह इब्न रवाह रज़ी अल्लाह तआला अपने बीवी के साथ थे, लेटे हुए थे, गोद में सर था। अचानक रोने लगे और ऐसा दर्द भरा रोने लगे। बीवी ने देखा तो बीवी भी रोने लगी। बांदी थी, वो घर में दाखिल हुई तो इसने देखा ये दोनों रो रहे। इसने अपने हाथ में जो सामान था वो नीचे रखा और ये भी रोने लगी। बीवी को नहीं पता क्यों रोया जा रहा है, बांदी को नहीं पता क्यों रोया जा रहा है, एक माहौल बन गया रोने का। अब्दुल्लाह इब्न रवाह ने देखा सब रो रहे, अपने आंसू पोंछकर अपनी बीवी से कहने लगे, अल्लाह की बंदी क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। तो बीवी कहने लगी, जी तुम्हारे रोने ने मुझे रुलाया है। ऐसा दर्द भरा रोना था आपका, आपको क्या हुआ, क्या दर्द आपको सता रहा है, क्या तकलीफ है आपको जो ऐसे दर्द से आप रो रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न रवाह कहने लगे, मुझे कोई दर्द नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तेरे गोद में लेटा हुआ था, मुझे मेरी कब्र याद आ गई, मुझे मेरी आखिरत याद आ गई, मुझे पुलसिरात का रास्ता याद आ गया, अल्लाह के सामने बंदा बनाकर खड़ा होने का मंजर याद आ गया। मैं उस खौफ से रो रहा हूं कि जाना तो है, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ये थे हमारे असलाफ, वहां भी अपने अल्लाह को नहीं। और आज का ईमान कब्र को देखकर क्यों इतना रोते, तो कहते थे ये कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, यहाँ पहुंचते ही आदमी को एहसास हो जाएगा मैं क्या कर कर आया है। गफलत है भाइयों। मैं और अपनी जिंदगी हम पलट कर देखे क्या कर रहे हैं, कितनी नाफरमानी की, जुल्म पर जुल्म करते गए, नमाजें छोड़ते गए, नाहक जुल्म करते गए, भाई बहनों का हक खाया, नौजवान माँ बाप के नाफरमान। एहसास नहीं मेरे इस हरकत को मेरा अल्लाह देख रहा है।
कर बनेगी जब मौत का फरिश्ता आएगा और यहां से उठा कर लेकर जाएगा। ये गफलत से निकलना है भाइयों। ये दुनिया छोड़ने की जगह है, यहां रहने की जगह नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम इसी बात को समझाने के लिए दुनिया में आए और लोगों के पत्थर खाए, पत्थर खाकर लोगों को समझा गए, और देखो आखिरत की तैयारी कर लो, और देखो कब्र की तैयारी कर लो, मैदान महशर में अल्लाह के सामने खड़े होने की तैयारी कर लो। और तुम्हें मैं क्या बताऊं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के साथ बैठे हुए थे, मजलिस लगी हुई थी। अबू बकर ने देखा आपके चंद बाल सफेद हो गए। यारे गार थे, सफर और हजर के साथी थे, दोस्त थे, याराना था। कुर्बान जाओ अबू बकर की कुर्बानियों पर। नबी ने फरमाया मैंने सारों का हक दे दिया, अबू बकर का हक नहीं दिया। अबू बकर का हक अल्लाह देगा। जिंदगी को समझा था, सब कुछ लुटाया, सब कुछ लुटाया। वो बेवकूफ थे और हम शाने हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे और आप सबको माफ करे। सब कुछ लुटाया वहां। सलमान फारसी ने सब दे दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ सलमान बड़ा, ओ सुहेब, सलमान सुहेब बड़े नफे की तिजारत कर कर आई है। नफे की तिजारत किसको कह रहे? सब कुछ लुटा कर आखिरत को बचाना नफे की तिजारत है। ईमान वाला कहता है ओ जी नमाज छूटती तो छूट दी, कस्टमर ना जावे। मेरी बहन नाराज होती तो होने दो, भाई नाराज होता तो होने दो, अम्मा नाराज होती होने दो, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए, ये जमीन मेरे हिस्से में आनी चाहिए। इसके अलावा कोई पूरी दुनिया नाराज होती तो हो जावे, मुझे कोई परवाह नहीं। एहसास नहीं ना आखिरत का, पता नहीं ना आखिरत क्या चीज है। रोटी की भूख समझ में आती है, टूटा हुआ बल्ब समझ में आता है, टूटी हुई फर्श एक ईमान वालों को पता है उसकी क्या है कदर, लेकिन इस ईमान वालों को ये नहीं पता आखिरत है क्या भला, आखिरत है क्या चीज। ईमान वाला इसको नहीं कहते सर ओ जी देखा जाएगा, देखेंगे क्या होता वो देखेंगे। हाय मैं कुर्बान जाऊं नबी पर। अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह आपके चंद बाल सफेद थे, शमाइल कुबरा में है, शमाइल तिरमिजी में भी है, आपके 17 बाल सफेद हुए थे दाढ़ी के और सर के मिलाकर, चंद बाल कम ज्यादा रिवायतें हैं। और यारे गार ने देखा, सिद्दीक अकबर ने देखा चंद बाल सफेद थी, बड़ी अंदर से ओ मोहब्बत जगी और कहने लगे या रसूल अल्लाह आप बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मुझे उम्र ने बूढ़ा नहीं किया, मेरी उम्र ने मुझे बूढ़ा नहीं किया, बल्कि मुझे सूरह मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया है, मुझे सूरह वाक़िया ने बूढ़ा कर दिया है। क्या है इन वाक़ियात के अंदर? इन वाक़ियात के अंदर अल्लाह उस मैदान महशर का जिक्र करता है जिससे आज हम सब गाफिल हैं। उन हालात को सुनकर नबी जैसी शख्सियत पर इतना गम सवार है कि उनके बाल पक गए, बाल सफेद हो गए। और आज का ईमान वाला वो आखिरत के लिए कहता जी देखेंगे, आखिरत में लोग आज देखेंगे, आखिरत में लेना ले लेना, लेकिन मुझे याद दे पहले। भूल गया आखिरत को जिसके बारे में अल्लाह कहता है अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। अल्लाह फरमाता है अल-क़ारिया मल-क़ारिया वमा अदराका मल-क़ारिया। तो मेरे बंदे तुझे पता है चीख खौफनाक मंजर क्या है और तुझे पता भी नहीं हो सकता। और तू तो रोटी पर मरने वाला है, तू उसको क्या समझेगा? तू तो चाय पर बिकने वाला है, उसको क्या समझेगा? तू तो रोटी मकान और कपड़ों पर बिकने वाला है, अपने ईमान के सौदे करने वाला है, तू क्या आखिरत को समझेगा?